नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशंस के बारे में, यानी रासायनिक संरक्षण का नियम। जब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेकर नया कंपाउंड या नए एलिमेंट फॉर्म करने जा रहे होते हैं, उस समय जिन लॉस के ऊपर हमें ध्यान रखना होता है, जिन नियमों का हमें पालन करना होता है, वो सारे नियम इस यहाँ पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, इन नियमों के लिए अलग अलग से एक वीडियो पर्टिकुलर पूरा उनका डिटेल से क्लासिफिकेशन जानने के लिए हम अलग अलग वीडियोस भी अपने प्लेलिस्ट में आपके लिए आगे आने वाले समय में अपलोड कर देंगे। यहाँ हम जानने जा रहे हैं बेसिक क्या होता है, इस लॉ क्या होती है, ये इनमें कौन कौन सी लॉ आती हैं और कैसे उनका यूज किया जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्लास 11th के स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में ले रखा है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और बहुत ही आसानी से सुंदर तरीके से इसे समझिए। ये दोनों प्रकार के बोथ द स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो फॉर बोथ द स्टूडेंट, मतलब ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाला है। यानी एक ही वीडियो से आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे इसको पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ आपका इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा, सेकंड हाफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन मींस व्हेन two or more than two elements are used to make a compound and which laws are there to combine them, it is known as the law of chemical compositions. There are main 5 laws which have to be followed when we are making new components or compounds with the help of two or more than two elements. First one is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. It is discovered by Antonio Lavoisier. He was a chemist, French chemist. He discovered that when two or more than two elements are combined to make a compound, the mass of the elements are equal in both sides. Means the mass of the product is equal to the mass of the initial stage of the elements. We will discuss it in a separate video. In next topic is, next one is law of definite proportion. It means when you are combining two or more than two elements to form a compound, their proportions should be in a definite, their proportion should be in a definite manner. Their proportion should be in definite manner. Means their weight are already decided. This much is this one and this much is this one. We will discuss it in next video. There will be a separate video of law of proportion. Each and every laws will be specified in a single video. Here we are going to discuss about the combined laws of chemical composition. Third law is law of multiple proportion. Means when we are using two or more than two elements to form two or more than two compounds, then their weight proportion may vary according to the weight of and number of compounds to be made. Next one is Gay-Lussac's law of gaseous volume. In this, Gay-Lussac has stated that in the gaseous law of Gay-Lussac, he stated that in the presence of temperature and pressure, what is the effect of these on the volume of the gas? It is the dealing of this matter is with Gay-Lussac's gaseous volume law, gaseous law of gaseous volume. Next one,
और फिफ्थ वन इज Avogadro's law. Avogadro has also said that when we are combining two or more than two elements to form a compound, it is said that on a definite temperature and pressure, the molecules of the elements should remain same. The number of molecules of that particular elements should remain same. Further, we will discuss these laws in different videos. Here is the basic knowledge of the laws which are used for the chemical combinations. Hope you have enjoyed the video in English section. Now let's कंटिन्यू इट इन हिंदी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। अब हम हिंदी में इसी बात को दोहराएंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा बात है। हम बहुत ही सरल और आसान भाषा का प्रयोग करके आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। हमारी बातों को सुनने के लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। लास्ट तक बने रहिए और आपको बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से ये बातें समझ में आ जाएंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण कर रहे होते हैं, तो यौगिक का निर्माण करते समय हमें जिन जिन बातों का ध्यान रखना होता है, जिन जिन नियमों के अनुसार यौगिक का निर्माण होता है, उसे ही हम रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के लिए हमारे पास मुख्यतः 5 नियम हैं। इन 5 नियमों का पालन करने पर ही हमारा जो रासायनिक संयोजन है वो संपूर्ण माना जाता है, नहीं तो रासायनिक संयोजन की जो क्रिया है उसे पूरा नहीं समझा जाता है। आइए देख लेते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। इन 5 नियमों का पालन हमें रासायनिक संयोजन करते समय करना चाहिए। पहला है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसे एंटोनियो लेवाइजियर ने प्रतिपादित किया था, या इसके बारे में एंटोनियो लेवाइजियर ने हमें बताया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब भी किन्हीं एलिमेंट से को कंबाइन करके नया कंपाउंड या नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, तो जो उनका इनिशियल स्टेज में जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं या जो एलिमेंट्स लिए हैं, उनका जो द्रव्यमान होगा, वो जब नया प्रोडक्ट बन के आएगा यानी हमारा जो कंपाउंड है वो तैयार हो जाएगा, तो दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। दोनों का द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है। अगला जो आपका रूल है जिसे हमें फॉलो करना है रासायनिक संयोजन के समय, वो है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी हम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को लेंगे नया कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो एक निश्चित अनुपात में लिए जाएंगे। वो एक निश्चित अनुपात में लिए जाएंगे, यानी उनका जो वेट है वो एक निश्चित होगा कि हाँ भैया इतना पार्ट इसको लेना है और इतना पार्ट इसको लेना है, तब हमें क्या मिलेगा? नया हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस बात को भी उन्होंने ये हमें ध्यान में रखना है। अगला रूल क्या है? अगला रूल है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, मींस गुणित अनुपात का नियम। ये कब लागू होता है? जब हमारे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं और जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो भी 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बन रहा है, तब क्या करते हैं? तब ये नियम लागू होता है गुणित अनुपात का नियम। जितने मात्रा में हमें वो अगला प्रोडक्ट बनाना, अगले कंपाउंड को बनाना या हमारा प्रोडक्ट हमें बनाना है, उतनी मात्रा में ही हम क्या करते हैं? अपने बेसिक एलिमेंट्स जो हैं जिनसे हमें नए कंपाउंड को फॉर्म करना है या नए एलिमेंट्स को फॉर्म करना है, वो ले लेते हैं दोस्तों। और करते क्या है? उनको उस मात्रा में लेकर मतलब उनका वेट उस हिसाब से बढ़ा देते हैं। जैसे अगर हमने एक रुपया लिया और किसी को 3 रुपए की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? 3 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 गुना कर देंगे। वैसे ही यहां भी करते हैं, उसका वेट जिस हिसाब से आपको रिजल्ट चाहिए उसी हिसाब से उसके वेट में उतना मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसीलिए इसे गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। अगला आपका नियम जो है वो क्या कहता है? अगला नियम है गैलुसैक के गैसीय आयतन का नियम। गैलुसैक ने हमें बताया कि जब हम गैसीय एलिमेंट्स को लेकर नया गैसियस कंपाउंड बनाते हैं, तो उस समय क्या लॉ फॉलो करना होता है? उस समय लॉ फॉलो करना होता है गैस कि जो हमारे एक निश्चित टेम्परेचर और निश्चित दाब पर, प्रेशर और टेम्परेचर हमारा जब
कांस्टेंट रहता है उस समय उस जो आपका गैसेस होती हैं उनका जो वॉल्यूम होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है अलग अलग कंडीशंस में, वो इस लॉ के अंतर्गत हमें ध्यान रखना होता है। गैलुसेक के गैसीय आयतन के नियम के अनुसार हमें उनको फॉलो करना होता है। ये हम अगला है आपका, ये हमें बात ध्यान रखनी है। अगला आपका जो 5वां रूल है वो क्या है, गैलुसेक का गैसीय नियम के बाद अगला रूल है एवोगाद्रो का नियम हमें फॉलो करना पड़ता है। एवोगाद्रोस लॉ, एवोगाद्रो भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एक रूल दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, और ये बात फैक्ट भी है, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया था। क्या था वो ये था कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर, मतलब आपका प्रेशर और टेम्परेचर निश्चित है, उस पर जब हम कोई नया एलिमेंट बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो एलिमेंट्स की जो न्यूक्लियर्स होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियर्स होते हैं वो उनकी जो संख्या होती है वो निश्चित रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ये बात एवोगाद्रो ने कही। ये सारे के सारे लॉज आपके रासायनिक संयोजन के नियम हैं, ये सारे के सारे हमें फॉलो करने होते हैं, तभी हमारा रासायनिक संयोजन अच्छे से हो पाता है और हम ये कहेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट है, कंपाउंड जो हमें फॉर्म हुआ है हमारा, वो एक स्टेबल कंपाउंड है, वरना वो स्टेबल नहीं होता है। इन सभी लॉस के बारे में हम फर्दर डिटेल में अलग अलग एक वीडियो आपको आगे लेकर आएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, और जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में जरूर जाएगी और आप आगे देखकर इन चीजों को पढ़ और समझ सकते हैं। आशा है आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज पसंद आया होगा, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो, और अगर आप हमारे साथ पहले से हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को पूरा वॉच करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन में जितना ही आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे उतना ही यूट्यूब हमारे वीडियोस को आगे प्रमोट करेगा, हमारे चैनल को प्रमोट करेगा, और हम और भी अच्छी कंटेंट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे भविष्य में। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।